This call is now being recorded. Okay, so let us start the session by starting a new chapter. The name of the chapter is Wireless Local Area Network. Okay, if you go to the syllabus, if you have seen the syllabus, then let me show you the syllabus first. Where is the syllabus? This is the syllabus. Okay, so chapter 1, 2, 3. So we have done these three chapters as I told you in the last session only that मैंने आपको ये इसका syllabus बताया था. So this is done now. Now we are going to start the fourth chapter. मैं भाग नहीं रहा हूँ actually. I'm going quite slow because the if the topics are clear and if you get the concept, then you can easily write down the answer of any question from any chapter. Okay, so I'm going quite slow. Okay, so in the fourth chapter you can see the syllabus. From the fourth chapter, the actual name is not given for any chapter. Okay, not a proper name is not given for any of the chapter from the syllabus. You can see that in fourth module, in the fourth chapter, the name is like wireless local area network, but it contains number of topics. Sorry. You can see, I think 4.5, so five total submodules, subtopics are there. The first is regarding wireless local area network. Okay, they have given a very short syllabus. Okay, if you will see, then if you will see the weightage, not a weightage, the number of hours to complete this chapter is 8. Okay, मतलब 8 lectures में ये आपका chapter complete हो जाना चाहिए according to the Mumbai University peoples. Okay, but this is not possible actually. Okay, it requires at least 16 hours to complete the chapter whatever topics they have provided. Okay, so we can leave this. Okay, we will try to complete as much as possible, because you can see the fifth chapter we have quite less topics, and in the sixth one this is quite more number of topics are there. Okay, so we after completion of this fourth chapter, what we will try to do after completion of this fourth chapter, we'll try to take the important question from this fifth and sixth chapter. Okay, so in this, ip mobility, ipv6, and then macro में कुछ और माइक्रो में कुछ, so ऐसे कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा. Then we'll learn those topics only. Okay, no need to go over in there. Then in sixth chapter we have LTE, and after that SEE architecture. Then EPS evolved packet system, EUTRN, ये क्वेश्चन आपका आता है कभी कभार 10 मार्क के लिए. वोल्टी वॉइस ओवर LTE. ओके, देन यहाँ पर कुछ नहीं है. यहाँ पर आपका आता है SON LTE, दैट इज सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क. बस और कुछ नहीं आता है. इसमें से दो तीन क्वेश्चन, इसमें दो तीन क्वेश्चन. सो विल ट्राई टू फर्स्ट फोकस, बिकॉज वी हैव लेस टाइम. We have less time remaining, we have less number of lectures remaining, so we will try to complete those topics only which are important according to the examination point of view. Okay, so without wasting time, because actually I was wasting time because that other students are joining, but there's no hope, I think so. Only 14. जब स्टार्ट किया था only 11 थे, अभी 14 है. मतलब peoples are not now onward, peoples are not interested in the lectures. They are just roaming here and there, and when the attendance time comes, so they join the lecture and they give the attendance. It's okay, those who are interested and those who want to learn, and those who wants to at least introduce with the particular topic which are there in your syllabus, because finally you're going to learn all this thing. Because आपको जब आगे लास्ट में जब एग्जाम्स रहेंगे तो स्टडी आपको करना है. तो क्यों ना ऐसा करे कि उस टाइम पे स्टडी करने के बजाय कुछ एटलीस्ट कुछ 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 हम लोग को अगर 20%, 30%, 40% जितना भी आप लोग समझ सकते हैं लेक्चर में अगर समझ गया, so that will be plus point for you when you will study at the time of examination. Okay, so that is my point of view. मेरा थिंकिंग ऐसा है. तो एटलीस्ट जितना हो सकता है एटलीस्ट कैप्चर कर लो, एंड देन बाद में स्टडी तो करना ही है. पीपल थिंक दैट कि भाई करेंगे लास्ट में करेंगे, जो करना है लास्ट में करेंगे. दैट इज नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज एग्जामिनेशन अब आपको पता है सब पूरा सिस्टम हिल गया है. सो एनीथिंग इज पॉसिबल from Mumbai University. Okay, so let us start with the chapter, that is fourth chapter.
I have taken new template. I've taken new slide design. Okay, let me tell you. Please tell me, you people tell me that this is feasible. You can see the topics. मैंने इसका font size मैंने इसका थोड़ा बड़ा रखा है जानबूझ के. You will find in all the slide, almost all the slide, the words and the sentences are visible, as you can see. ठीक है, बड़ा बड़ा मैंने font रखा हूँ. I've make use of more number of slides, but it should be visible to you. Okay. So as you can see, according to the syllabus, on this first slide I have put the the topic which you're going to learn in this chapter number 4, that is wireless local area network. It is quite interesting topic. Okay, this is related with our daily concept which we are using on a daily basis. Okay, so the wireless local area network, it's all about the ad hoc and infrastructure network. Okay, that is quite related with our routine. Then IEEE 802.11 standard, IEEE standard. Okay, उसका क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, और वो सब दो तीन चीजें रहती है उसके अंदर, वो देखेंगे. Then regarding Wi-Fi security, this Wi-Fi security topic is not there in your the book which I have shown you. ये वाली जो book है आपकी, you can see this book, मोबाइल कम्युनिकेशन. ये जो बुक आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम, मोबाइल कम्युनिकेशन, जॉशन शिलर. ओके, सो ये जो बुक है, इस ये आपकी ऐसी बुक है जिसमें मैक्सिमम सिलेबस आपको मिलेगा. ओके, बट फ्रॉम दिस चैप्टर ये वाला जो टॉपिक है वाईफाई सिक्योरिटी, सो दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज नॉट देयर इन दिस चैप्टर, इन दिस बुक. सो यू नीड टू रेफर समथिंग एल्स. ओके, तो आपको कुछ और रेफर करना पड़ेगा, वो बताऊंगा आपको, उसकी मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा. ओके, बाकी जो टॉपिक्स है वो आपकी ये बुक में मिल जाएंगे. ओके, जैसे जैसे जो टॉपिक आपकी ये बुक में नहीं है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, so that I will inform you. Okay, so in the third topic you will learn about the Wi-Fi security, WEP, the WPA. You have seen while setting the Wi-Fi, जब आप सेट करते हैं तो ये सारे ऑप्शंस आते हैं उसके अंदर. Then what are the different wireless LAN threads? Okay, then securing, how you can secure your wireless network. Okay, so some points are there, some theories only there. Okay, you need to understand. And then the next topic is hyper local area network. Okay, so ये इसका है हाइपरलैन 1 हाइपरलैन 2 दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर है और उनका एक्सप्लेनेशन है. एंड लास्ट में ब्लूटूथ, द मोस्ट कॉमन टॉपिक. जब बात चल रही है वायरलेस नेटवर्क की और ब्लूटूथ ना आए, ऐसा हो नहीं सकता. So last topic is the Bluetooth. We have introduction, the scenario architecture and its protocol architecture. Okay, so these are the different topics we are going to learn in this particular chapter. Okay, so let us start with the first one, that is wireless local area network. Iska introduction, then we have infrastructure and ad hoc network. Okay, it is very bad idea if I will start with the infrastructure and ad hoc network topic of this wireless local area network topic. Okay, अगर मैं इसमें डायरेक्टली आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क, यू कैन सी हुई है, ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एड हॉक नेटवर्क जो टॉपिक है, अगर मैं डायरेक्ट ये स्टार्ट करता हूँ, देन इट इज़ वेरी बैड आइडिया. आई थिंक यू मस्ट अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज, यू मस्ट बी फर्स्ट यू विल बी इंट्रोड्यूस्ड अबाउट द वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क क्या है. then I must tell you that what are the advantages of the wireless local area network. If you are going to use this network, then what are the different advantages, you must know and you must understand, because question का दिया नहीं है यहाँ पर, ये टॉपिक दिया नहीं, बट यू नीड टू लर्न अबाउट इट. ओके, कि व्हाट आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क. ओके, एंड व्हाट आर द डिफरेंट what we can say is advantages as compared to the wired network. What are the different disadvantages of the wireless local area network. Wired network के comparison में इसके क्या disadvantages है, that you can see. And after that one more topic, advantages and disadvantages, दो जो इसमें नहीं दिया आपको, but we will learn about that also in this today's lecture. Okay, we'll try to complete these three topics which are not over here, but we'll try to complete. Advantages of the wireless LAN, आपका disadvantages of the wireless LAN, and the third one is the design goal. Okay, while the peoples at that time, आज से कुछ साल पहले जब आपका वायरलेस लैन डिजाइन हो रहा था, तो उस टाइम पे आपके डिजाइन गोल सामने आए थे. ओके, तो ये डिजाइन गोल्स बेसिकली क्या होते हैं, व्हेन यू गोइंग टू इम्प्लीमेंट समथिंग, when you're going to develop something or construct something, so it must have it must have x, it must have y, it must have p, it must have q.
तो इसमें ये सारी चीजें होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. So all these things, when you are designing something, so you must have all these qualities, all these things in your product. Okay, so those design goal we are going to learn about this wireless local area network. Okay, so it should be clear that in this particular lecture, in this particular session, we are going to learn about the advantages. First, introduction. Second, advantages. Third, disadvantages. And then fourth, design goals. These four topics we are going to learn. Okay, बोलो इतना 20 मिनट तो हमारे इसी में चला गया. ओके, सो इंट्रोडक्शन. सॉरी, आई मेक चलो कोई बात नहीं, इतने ही रखते हैं. फ्यू पीपल्स आर comfortable, that's okay. Okay, I'll make a very short introduction about the wireless LAN. Okay, so LAN to pata hai hum log ko, that's a local area network. It's a completely wide network. Okay, you will be using kind of devices, you will be using kind of wiring signals. Okay, so wirings hai और cables है and adapters है and connectors है and then आपके networking devices है. So you are gonna use all these thing, all these component while you are constructing any wide network. Okay, अब उसी की जगह अगर हम लोग वायरलेस लैन की बात करें, so उसी लैन को आपको क्या कर देंगे, वायरलेस कर देंगे, so that you are not going to use any kind of component like cable, adapter. Okay, उस हमको यूज नहीं करना है. चलो देखते हैं. So it's all about the introduction of the wireless LAN. In this chapter, we are going to present several wireless local area network technologies. Okay, and the global goal of the wireless LAN. This is important. Second point is important. The global goal of the wireless LAN is to replace office cabling. Whatever cabling in an organization, firm, in an office, building, whatever we said. So whatever cabling is there, the global goal of wireless LAN is to replace all the cabling. Okay, to enable tetherless access. Okay, number one, in to the internet, and to introduce the higher flexibility for ad hoc communication. Okay, for example, ad hoc communication means the ad hoc network basically उस network को बोलते हैं. I told you in the I think few session back also that it is the network which can be formed instantaneously. Okay, on the spot that particular network can be formed. So that is the ad hoc network. Okay, and after communication, when the communication is done, you can just you all can leave, because all the nodes which are communicating with each other all are on the move. Okay, मतलब सबका सब आपको मोबिलिटी पे रहता है. सो 2-3 लोग वायरलेस जमा हुए, कम्युनिकेट किया, हो गया कम्युनिकेशन, चले गए. तो फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात करने के बाद में अच्छा हम लोग 2-3 लोग साथ में बात कर रहे हैं. So we all communicated. We all are at different locations. So I'm in Khaga, you are in Panvel, you are in Vadala, you are in CST. Okay, all are communicating with each other. So it's an example of WLAN, that wireless LAN hai. Okay, so we have to introduce the higher flexibility. Okay, the person is in Vadala, the person is in Delhi, I'm in Mumbai, the person is in Rajasthan. We all can communicate. So this is the flexibility we can see. For ad hoc communication, this is the ad hoc communication. We all form the a network, we have communicated, and after communication we just disconnect. So I बात किए and चले गए. So that's a ad hoc network. Ad hoc बोलते हैं temporary को. ठीक है, it's a temporary communication. Okay, so I've given the example like group meeting. So group meeting or conference call or just the communication between two people, anything you can consider. Okay, so you can just understand the emotion behind this wireless LAN, that the global goal of wireless is to replace the cabling mess. Okay, whatever mess is spread up like cables, adapters, network, जितना भी है वो सबको हटा के हमको सब कुछ को क्या वायरलेस करना है. Okay, that's a goal, that is the global goal behind the wireless LAN. Okay, आते हैं अभी एडवांटेजेस पे. ठीक है, फटाफट हम लोग का एडवांटेजेस देखना है. एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, डिजाइन गोल, विल ट्राई टू कंप्लीट इन विद इन दिस लेक्चर ओनली. ओके, अभी जाके भी सिर्फ 20 ही लोग आए, बहुत बुरी बात है भाई. दोस्त ये एक काम करते हैं, I'll give you 2 minutes. Okay, I'll give you 2 minutes. ये 2 मिनट के अंदर फटाफट आप जो है ना एक काम करो, अटेंडेंस
मैं लिंक दे रहा हूँ आपको, अटेंडेंस लिंक। ये 20 लोग फटाफट अटेंडेंस मार्क करो। It is 2:25 now. I've opened the link. Please mark your attendance. I'm waiting for 2 minutes only. Okay, it will hardly take 30 seconds to mark your attendance. I'm giving you 2 minutes. Sharp at 2:27. Okay, we'll start the session. Just do it fast. देखो 20 से 24 हो गए। हाँ, हमदर्द और आस पड़ोस वालों ने अपने आस पड़ोस वालों को इन्फॉर्म किए होंगे अभी। 24 9 responses। जल्दी मार्क करो, जैसे ही 24 हुए आई विल क्लोज द लिंक। 25 हो गए। ट्वेंटी फाइव 25 से ज़्यादा लिंक नहीं आना चाहिए अटेंडेंस। 17 18 19 20 21 maximum 25 22 more 3 27 होने वाले हैं भैया। टाइम देखो फटाफट जल्दी। I hope all are done who are in the meeting right now. All are done. अगर कोई नहीं है तो यहाँ पर चैट बॉक्स में डालो फटाफट जल्दी। 2 मिनट्स नहीं, 2:27 हो गए। Done, Saif? Done. Okay. Anyone who is remaining? No, I think so. कोई बाकी नहीं है ना भाई? चलो ठीक है। I'm closing the link. 29 responses आ गए फिर भी देखो। Okay, so resuming the session. वापस से करते हैं चलो। So we were so हम लोग ने introduction complete किया successfully. Now we are moving to the advantages of the WLAN. Okay. These are few advantages, you know. सबसे पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ advantages कौन कौन से। The first is flexibility, second is planning, third is design, fourth is robustness. You know, you will find all these advantages are very common. Okay, जो हमेशा हर किसी के advantages में आते ही हैं। Okay, so all these advantages are very common. Robustness and then afterward cost and then quality of अच्छा यहाँ से आपके disadvantage शुरू हो गए। Okay, चलो पहले start करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट एडवांटेज इज फ्लेक्सिबिलिटी। आपका जो वायरलेस LAN है ये फ्लेक्सिबल है। कैसे? सो विद इन अ रेडियो कवरेज नोड्स कैन कम्युनिकेट विदाउट फर्दर रेस्ट्रिक्शन बिकॉज इफ देयर इज अ कवरेज। ओके, अगर आपका वाईफाई राउटर इस पर्टिकुलर कवरेज के अंदर अगर प्रोवाइड कर रहा है, ओके, so whatever signals it has to provide, if it is providing the services, then you can easily all the nodes within that particular coverage can easily can easily access the सर्विसेज। ओके, विद इन दैट पर्टिकुलर कवरेज। ओके, वो यहाँ है कहीं भी कोई इशू नहीं। वो मूव होकर घूम फिर के कहीं पर नाच के भी कर सकता है। अगर आप डेस्कटॉप पे हो तो आपको एक जगह बैठना होगा। अगर आप वही चीज़ आप मोबाइल में एक्सेस कर रहे हो तो पूरे घर में कहीं पर भी नाच के आप
आप काम कर सकते हैं. That's the flexibility of wireless local area network. Okay, radio waves can penetrate walls, senders and receivers can be placed anywhere. Okay, so जाहिर बात है आप अगर रेडियो वेव यूज कर रहे हो तो आप कहीं भी जाओ, आप अपने रूम के अंदर हो और वाईफाई आपका राउटर बाहर लगा हो, so you can easily access your network, you can easily access the services, you can easily access the signal without going to outside. Okay, so because your radio waves are going to penetrate the walls. Okay, so that's the flexibility of the wireless LAN. First point. Second, प्लानिंग. ओके, आपने अगर कभी वाइड की प्लानिंग की होगी, बिकॉज अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक लैब बनाना है, लैब के अंदर 20 कंप्यूटर्स रहने वाले हैं, स्मार्ट माय वर्ड्स. ओके, यू हैव टू सेट अप 20 कंप्यूटर्स इन अ लैब. ओके, एंड ऑल दीज विल बी हैविंग ये इसकी स्पेसिफिकेशन है. ओके, सो फॉर प्लानिंग पर्पस, फॉर प्लानिंग many things are required. आपको आपको नेटवर्क को प्लान करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा, उसके बाद में उसको सिचुएट करना पड़ेगा एंड ऑल दैट. बट ये चीज प्लानिंग हमको इसमें रिक्वायर्ड है. आपको वायरलेस लैन में ज्यादा प्लानिंग की जरूरत नहीं. यू डोंट रिक्वायर्ड ऑल दोस सच प्लानिंग्स इन द वायरलेस नेटवर्क सिनेरियो. ओनली वायरलेस एंड एड हॉक नेटवर्क्स अलाउ फॉर कम्युनिकेशन विदाउट प्रीवियस प्लानिंग. आपने वाईफाई राउटर लगा, 50 लोग आके खड़े हो गए, 50 लोग हो गए कनेक्ट हो गए, ओपन रख दो, यू ऑल कैन यूज इट विदाउट एनी प्रायर प्लानिंग, without any previous planning. That's the advantage for us, that we don't require any planning part. Okay, wireless LAN का any wired network needs wiring plan. Okay, for wired मैंने सब पूरा देखो, मैंने डिटेल में डाला हूँ, मैंने आपको नोट्स डिटेल में डाला हूँ, so that you can use it for the examination purpose also. Okay, so any wired network needs wiring planning, and for wired network additional cabling with the right plugs and probably internet working units have to be adapter, connector, ये वो अमा का डिमा का, आपको you required lot of thing. Okay, planning ज़्यादा है but wireless LAN में planning कम है. Okay, third point, that is design. Okay, so as far as the design of the wireless LAN is concerned, your wireless network allow for the design of small independent devices which can for example be put into the pocket. जैसे for example आपका जियो का छोटा सा वो है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब उसका नाम याद नहीं आ रहा, जियो फाई ऐसा करके कुछ तो नाम है. सो यू कैन कीप इट इन अ पॉकेट एंड यू कैन एक्सेस द नेटवर्क. ओके, फॉर एग्जांपल फाई आपकी पूरी फैमिली ट्रैवल कर रही है, the whole family is traveling into the train and to the bus or into the luxury, and you all are accessing the network and you all are connected with each other also. Okay, so that's a great point. The designing part, you don't require designing in the wireless LAN. Okay, you can just put it in the pocket and you can just use it. Okay, cables not only restrict user but also designer for small PDS notepads and all that. अब जाहिर बात है अगर वही चीज आपके केबल के थ्रू होती तो आपको अपने घर पे बैठना होता, आप घर से बाहर निकल नहीं सकते थे. ओके, बट वही चीज आपने क्या किया, उसको अपने वायरलेस कर दिया. तो क्या एडवांटेज है, यू कैन यूज द इंटरनेट व्हाइल ट्रैवलिंग इनटू द लग्जरी. आप जा रहे यहाँ से गाँव, आप पुणे जा रहे हो, आप कहीं और जा रहे हो. सो वाइल ऑन द मूव, आपको ऑफिस से कुछ असाइनमेंट मिला. ओके, आप घर पे बैठ के करना पड़ेगा आपको, अगर आपके पास में लैपटॉप नहीं है, मोबाइल नहीं है, अगर आपको नहीं कर सकते तो. Okay, but with the help of wireless LAN and its devices you can easily access the network while traveling also. अब जा भी अपना काम भी हो रहा है, रात भर में आपका काम हो गया, पूरा दिन दो घंटे ट्रैवलिंग किया, आपका काम हो गया. That's a design part. It's quite good and independent device which can for example be put into the packet, like आप उसको अपने साथ में लेके चल सकते हैं. ठीक है. Then robustness, the next advantage is robustness. Your wireless network can survive disaster also. तूफान आया, हल्की सी हवा चली, आपका जितने वाइड नेटवर्क है वो सब उखड़ के चले जाएंगे. वो होता है आपके वाइड नेटवर्क, आपके जो वायरलेस है, जो वायरलेस पार्ट है, वायरलेस पार्ट के अंदर भी जो आपके डिवाइसेस है विच आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, वो भी मतलब उनको भी मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, बट नॉट एज कम्पेयर टू द वाइड नेटवर्क. वाइड नेटवर्क के अंदर आपकी केबलिंग आई है बाहर से, पूरे केबलिंग हिल गई, वायर टूट गए, केबल कट गया, कहीं लगा, कहीं ग्रिल को लगा, उसके पतरे को लगा. सो ऑल दीज थिंग्स कैन हैपन. ओके, बट आपका वायरलेस नेटवर्क एज कम्पेयर टू द वाइड नेटवर्क इज कैन सर्वाइव डिजास्टर, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक और यूजर्स पुलिंग अ प्लग. ओके, लगा है. ओके, आपका अभी फॉर एग्जांपल केबल कट गया, किसी ने काट दिया केबल, या कहीं कुछ और प्रॉब्लम हो गया. सो दैट्स ये भी मतलब सह सकता है आपका वायरलेस लैन. If the wireless devices survive, people can still communicate. Okay, so अगर आपका नेटवर्क से सब कुछ बंद हो गया लेकिन आपका अगर है तो still you can communicate, you can call for the help and all that. Network requiring a wide infrastructure will usually break down completely.
अगर वाइड नेटवर्क होता तो वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता, बट यहाँ पर आपको एडवांटेज मिलता है। मैं ये नहीं कहता कि आपका वायरलेस लैन बहुत अच्छा है, ओके, क्योंकि जब हम लोग बात करेंगे उसके डिसएडवांटेज की तो फिर बोलेंगे सर अभी तो बहुत तारीफ कर रहे थे और अभी एकदम उसके डिसएडवांटेज गिना रहे हैं। सो इट में यू नो बिकॉज हमारे हर चीज़ के कुछ ना कुछ दोनों साइड्स होते हैं, कॉइन के दोनों साइड्स होते हैं, प्लस माइनस, पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड दोनों होती है। सो वी नीड टू टॉक अबाउट दिस थिंग आल्सो। द नेक्स्ट इज कॉस्ट। अच्छा भैया, कॉस्ट का देखो ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो अगर आपको वाइड नेटवर्क करना है तो देखो मैं दोनों सीन आपको बताता हूँ, दोनों सिनेरियो आपको बताता हूँ, ठीक है। सो यू हैव सेट अप अ वाइड नेटवर्क, ओके, फॉर एग्जांपल आवर लैब, ओके, वी हैव द कैपेसिटी ऑफ 24 कंप्यूटर्स, जो ना आपको जरा इसमें थोड़ा सा फोकस करो। You have 24 computers right now. The capacity is 24 computers per lab. Okay. If you want to add 5 more computers in that particular lab, then क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा आपके लैब में जो स्विच लगा हुआ है, दैट स्विच इज हैविंग द कैपेसिटी ऑफ 24 वाला है, 24 पोर्ट का है या 48 पोर्ट का है, कितने पोर्ट का है वो चेक करना। अगर वो 24 पोर्ट का है तो पहले आपको उसको OLX पे बेचना पड़ेगा और बाद में एक 48 पोर्ट का स्विच लेना पड़ेगा और फिर लगाना पड़ेगा। उसके बाद में आपको 5 अलग से कंप्यूटर्स लेना पड़ेंगे, 5 कंप्यूटर सेटअप करना पड़ेंगे। सेटअप करने के बाद में जिसका फर्नीचर का कॉस्ट आएगा वो अलग आएगा। आपके चलो आपको आपके जो कंप्यूटर का है कॉस्ट वो अलग है, फिर उनकी केबलिंग करना पड़ेगी, उनको सेटअप करना पड़ेगा, बहुत सारा काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और वही चीज अगर आपका वाइड होता, सॉरी वायरलेस होता, दैट इज वायरलेस लैन, दैट इज WLAN अगर होता तो आपने तो एक एक्सेस पॉइंट सेटअप कर दिया है, ठीक है। अब वो एक्सेस पॉइंट आपका जो क्या बोलेंगे उसको, वाईफाई राउटर जो आपका है जिसको मैं एक्सेस पॉइंट भी बोल सकता हूँ, तो दैट एक्सेस पॉइंट इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज इन इट्स कवरेज, ओके। तो आपका जिसको भी एक्सेस करना है, 5 न्यू मेंबर्स आर एडेड, ओके भाई आ जाओ, उनको पासवर्ड दे दिए, चलो हो जाओ शुरू, दे कैन स्टार्ट द वर्क, ओके। उनके पास में अगर लैपटॉप है तो ठीक है, नहीं तो यू हैव टू प्रोवाइड द लैपटॉप, बट स्टिल आई वोंट से कि भाई ये पूरा कंप्लीटली अच्छा है। कॉस्टिंग के कंपैरिजन के अंदर आपका ये जो वायरलेस लैन इट इज मोर फिजिबल दैन द वायर्ड वन, ओके। सो दिस इज द कॉस्ट एडवांटेज है हमारे पास में, कॉस्टिंग एडवांटेजेस है। नेक्स्ट वी हैव द डिसएडवांटेज, फटाफट देखते हैं हम लोग बिकॉज इसमें ज़्यादा टाइम हमको करना नहीं है, बट एटलीस्ट इफ वी गो थ्रू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड द डिजाइन रूल्स, देन आई एम श्योर अबाउट इट दैट you will be having complete idea about the wireless and it will help you to understand the later concept, okay। so क्या क्या है पहले काउंट कर लो। नंबर 1 फ्लेक्सिबिलिटी, नंबर 2 प्लानिंग, नंबर 3 डिजाइन, नंबर 4 रोबस्टनेस, नंबर 5 कॉस्ट, ओके। तो 5 याद रहेगा आपको। दीज आर वी हैव 5 एडवांटेजेस वी हैव मेंशन, ओके। आगे बढ़ते हैं, डिसएडवांटेज। अब करेंगे बुराई, अब तारीफ बहुत हो गई, अब करेंगे बुराई। सो द फर्स्ट इज क्वालिटी ऑफ सर्विस। जाहिर बात है वायरलेस लैन टिपिकली ऑफर लोअर क्वालिटी दैन देयर वाइड काउंटर पार्ट। आज भी अगर मुझे कुछ जीबीज में ट्रांसफर करना होता है तो आई ऑलवेज प्रीफर वाइड नेटवर्क, ठीक है। बिकॉज वाइड नेटवर्क के थ्रू जो जो मतलब के जो सर्विस मिलती है दैट सर्विस इज कंपैरिजन में सर्विस वाइड की ज़्यादा अच्छी है, ओके। बिकॉज वायरलेस का तो आप जानते हो एडवांटेजेस भी डिसएडवांटेज, बट वी हैव टू मेंशन सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस, so we are mentioning in this way, okay। so first is the quality of the service, where WLANs typically offer lower quality than the their wide counterpart, ठीक है। so wide के comparison में wireless quality आपको थोड़ा सा लो देते हैं। The main reason for this are the lower bandwidth due to the limitation in the, आप देखोगे इसका आपको अगर आप जो लेटेस्ट केबल है Cat6 केबल, Cat6 केबल लगाओगे तो आपको 1000 Mbps दे देगा वाइड पर, वही चीज़ आपको वायरलेस पर नहीं मिल पाएंगी, तो वायरलेस पर आपको थोड़ी सी बैंडविड्थ कम ही मिलेगी। प्रॉपराइटी सॉल्यूशंस, मैं ये सब रीड नहीं करूंगा, मैं आप लोग को जस्ट आपको मैं एक्सप्लेन करते जाता हूँ, ठीक है, आप लोग समझते जाओ। प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस में ऐसा है बिकॉज क्या क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल मेनी ऑफ द अभी वायरलेस आपका बाद में आया, जाहिर बात है द वायरलेस पार्ट, द वायरलेस एनवायरनमेंट केम्स लेटर, okay, and before that we were having complete wide environment, okay, we were having cables, we were having desktop, we were having laptops even, so all those were connected via the wide network only, so हमारे पास पूरा environment पहले wide था, so it means that most of the company, most of the organizations were having the wide environment only, okay, but now the people are switching into
or switching into the wireless environment, so not all the organizations have converted. Okay, so ये जो आपको जो प्रॉब्लम्स आएगा ना कंपैटिबिलिटी का, तो ये आपको प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। वायरलेस लैन भले आया, उसके भले ही बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बट कॉज ऑफ दी हो सकता है कि किसी ने वाइड में बहुत सारा खर्चा किया हो पहले अपना पूरा नेटवर्क डिजाइन करने के लिए, और बाद में फिर उसको पूरा इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारा खर्चा हो, बोलेगा मैं इतना सारा मेरा सेटअप है, मैं क्यों बर्बाद करूँ, मैं क्यों वायरलेस पे हूँ, मेरा वाइड अच्छा चल रहा है, ठीक है। सो एक ये प्रॉब्लम भी आ सकता है वायरलेस का, ठीक है। सेकेंड, थर्ड वन, रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शन भाई देखो कहाँ से आएंगी, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो होती है वर्ल्ड वाइड, दे रेगुलेट द ऑपरेशन एंड रेस्ट्रिक्ट फ्रीक्वेंसीज टू मिनिमाइज द इंटरफेरेंस। तो जो फ्रीक्वेंसीज पे, and as we know that our wireless environment works on particular frequencies only, okay, उसकी रेंज है, ठीक है। आपके जैसे आपकी रेडियो वेव्स है, सो रेडियो वेव्स की आपको रेंज मैंने बताया था स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, तो उसकी कुछ रेंज होती है। सो उसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, किसी और रेंज के साथ में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। उसमें भी आपके बहुत सारे बैंड होंगे, उस बैंड के अंदर इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है। So all wireless products have to comply with the national regulation. Whatever rules and regulation your government has provided nationally or globally, whatever they have provided, we have to comply with that particular regulations only. So for example, if we are for example बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं आपके, Alexa वायरलेस है, उसके अलावा आपके बहुत सारे छोटे छोटे टॉयज हैं, इन्हें आपके मेडिकल, आपके दोनों मेडिकल अप्लायंसेस है, आपके होम अप्लायंसेस है। सो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर नाउ इन वायरलेस बेस्ड, रखे। इतनी सारी चीज आपके वायरलेस बेस्ड आ रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो लिमिट और जो चादर आपको गवर्नमेंट ने दी है, या जो नेशनल रेगुलेशन बताता है, तो उसके हिसाब से आपके सारे प्रोडक्ट होना चाहिए। and it is very difficult for the organization, or sorry, for the companies to make the product wireless product which will comply with the national regulation, तो उनको बहुत restrictions आ जाते हैं, okay। So several government and non-government institution worldwide regulate the operation। read करके फायदा नहीं है, जो बताना था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। So it is very difficult for all the companies to form the product wireless product to which will comply with the national regulation। सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना उतना आसान नहीं है। सो दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज। ये ऊपर जो मैंने लिखा हूं ना, ये थोड़ा सा वो हो गया है, इसके डिसएडवांटेज है एक्चुअली। ये ऊपर जो लिखा हुआ है ना, सम एडवांटेजेस ऑफ वायरलेस, तो ये इसको मत कंसीडर करो, ठीक है। कहाँ है डिसाइड, ये आपका डिसएडवांटेज। चलो मैं इसको अभी चेंज कर दूं, वरना आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। ये हमारा डिसएडवांटेज हो गया, ये हमारा डिसएडवांटेज हो गया, ये तो हमारे डिजाइन गोल्स ही। ओके, हम लोग कहाँ थे, यहाँ पर थे। क्वालिटी ऑफ सर्विस, प्रोप्राइटरी सोल्यूशन, रेस्ट्रिक्शन। द लास्ट इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, अब जब बात आती है वायरलेस लैन की, तो सेफ्टी और सिक्योरिटी ये तो हमेशा मेंशन होती है, okay। As we know that in almost we are having our wireless product, we are having, because you can see, अब आपके सारे, आप यहाँ से वायरलेस से एक्सरे निकलता है, और आपको कंप्यूटर पे सारा, ऑब्वियसली इन्होंने कुछ तो वाइड कनेक्शन किया होगा, बट मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस आर वायरलेस आल्सो। मैंने आपको जैसे एक एग्जांपल दिया। सो वी विल बी हैविंग लॉट ऑफ डिवाइसेस, लॉट ऑफ प्रोडक्ट व्हिच आर वर्किंग वायरलेसली, ओके। सो हमारे मेडिकल लाइन में, हमारे होम अप्लायंसेस लाइन में बहुत सारी डिवाइसेस ऐसे हैं व्हिच यू कैन ऑपरेट फ्रॉम योर मोबाइल, फ्रॉम व्हिच यू कैन ऑपरेट विद द हेल्प ऑफ रिमोट, ओके। बहुत सारे डिवाइसेस आपको मिल जाएंगे। तो यूजिंग रेडियो वेव्स फॉर डेटा ट्रांसमिशन माइट इंटरफेयर with other high tech equipment, in example hospital। हो सकता है कि कुछ और इक्विपमेंट से भी आपका इंटरफेरेंस हो जाए, तो एक ये हो सकता है। सेंडर्स एंड द रिसीवर्स आर ऑपरेटेड बाय लेमैन, एक ऐसा बंदा जिसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ऐसा भी सेंडर और रिसीवर हो सकता है। सो रेडिएशन हैज टू बी लो, रेडिएशन हैज टू बी लो, व्हाटएवर कि आपने एक्सरे में देखा है, बाकी दूसरी में अल्फा रे, गामा रे, कौन कौन सी होती है, दैट इज जो बोलते हैं इसको, मैं सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ में अगर यूज नहीं करे, तो हो सकता है वो किसी और को नुकसान पहुंचा सकती है। सो दैट इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी इन द मेडिकल एंड होम अप्लायंसेस, ओके।
Special precaution have to be taken to prevent safety hazard. Okay, so अब आप लोग समझ गए होंगे क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ एक्चुअली. सो इन सारे डिवाइसेस के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर जो भी हम लोग ने वायरलेस टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट हम लोग ने यूज किया है, सो वी हैव टू केयरफुली यूज इट. Come to the design goal. Design goal में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा because we have already seen advantages and disadvantages. You can read it also. अगर नहीं हुआ तो कल भी हम लोग इसको कर सकते हैं. So not a big deal. First of all, we'll count how many design goals are there. Okay, first of all, let me say you that the design goals are the goal or the point, or we can say characteristics which should be there in your product. Okay, जो कि आप पहले बताते हैं कि हाँ भाई आप ये डिजाइन कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, if you are designing this mouse, okay, अगर ये माउस डिजाइन कर रहे हो तो इसको ऐसा होना चाहिए कि इसको आप इजीली हैंडल कर पाना चाहिए, इसका स्क्रोल बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, इसका जो राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक है वो ऐसा होना चाहिए, और इसके नीचे एकदम स्मूथ सरफेस होना चाहिए सो दैट आई कैन मूव इट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. ओके, एंड यहाँ पर इसमें कुछ इससे लाइटिंग होना चाहिए, इसमें लाइटिंग बाहर आना चाहिए. सो यू मे हैव नंबर ऑफ स्पेसिफिकेशन, यू मे हैव नंबर ऑफ डिजाइन गोल्स. ओके, बट जो मैंने बोला वो तो ऐसे ही मैंने आपसे मजाक किया, बट इसमें जो होना चाहिए गोल जो हमारे है डिजाइनिंग के, सो दैट शुड कंप्लाई विद द प्रोडक्ट. ओके, सो यहाँ पर हम लोग को उस अपने वायरलेस लैन की जो टेक्नोलॉजी है तो उसमें ये सारी चीजें होना चाहिए. दैट इज ग्लोबल ऑपरेशन, नंबर 2 लो पावर, नंबर 3 license free operation, number 4 robust transmission technology, then we have simplified spontaneous cooperation, number 5 कितने 4 हुए क्या 5 हुए, and then we have safety and security, then transparency for application. That's all. तो कुछ अराउंड 6 या 7 इसके डिजाइन गोल्स हैं. लिखे करके देखते हैं, फटाफट हो जाएगा. आई होप सो. For the very first design goal, because मैं सोच रहा हूँ अभी ये complete हो जाए so we can concentrate on the actual topic because we have lot of topic to complete from this chapter 4. Okay, so global operation, the first design goal, your WLAN product should sell in all countries, so national and international frequencies regulation have to be considered. तो आपने एक ग्लोबल लेवल पर एक फ्रीक्वेंसी सेट की है कि फॉर एग्जांपल ये जो मतलब मेरे हमारी एक्सरे मशीन है या हमारी कुछ और मशीन है, इट विल वर्क इन दिस वे, ये हमारी ये रेडिएशन पे काम करेंगी, ये रेंज पे काम करेंगी, उनकी फ्रीक्वेंसीज ये होंगी. अब आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर आपका जो प्रोडक्ट है जो कि पर्टिकुलर कंट्रीज में या फिर नंबर ऑफ कंट्रीज में जाने वाला है, तो आपको प्रॉपर्ली उसको उसके हिसाब से सेट करना है. ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको उसके हिसाब से सेट करना पड़ेगा, सो दैट इफ माय वायरलेस लैन प्रोडक्ट इज गोइंग टू सेल इन ऑल द कंट्रीज, देन दे मस्ट हैव डिप्लॉयड or they must comply the national and international frequency regulation. Okay, अगर कंसिडर नहीं करेंगे तो इस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए कॉम्बिनेशन और कोऑर्डिनेशन शुड बी देयर. ओके, इफ दिस इज द प्रोडक्ट wireless LAN product, then you have to use according to the national or international frequency regulation. Okay, मतलब जो भी यूज करना है भाई ये इसके अंदर आपको यूज करना है. ओके, देन लो पावर, ये एक पहला हमारा रिक्वायरमेंट जिसको हम लोग डिजाइन गोल्स को रिक्वायरमेंट भी बोलते हैं. ओके, सो लो पावर होना चाहिए, योर वायरलेस लैन मस्ट हैव लो पावर. कैसे, devices communicating via WLAN are typically also wireless devices running on the battery power. जैसे हमारा मोबाइल फोन है, एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास है, हमारे पास मोबाइल फोन है, कैसे चलता है ट्रांसमिशन. अगर हमको जब कॉल लगाते हैं तो क्या उसको हम लोग को पावर बैंक लगाना पड़ता है, क्या उसको हम लोग को चार्जिंग पे लगाना पड़ता है, कभी नहीं लगाना पड़ता है. दे वर्क्स ऑन दी लो पावर. ओके, तो जो मेरा सिग्नल यहाँ से जा रहा है दैट इज ट्रांसमिटिंग, द सिग्नल व्हिच इज ट्रांसमिटिंग फ्रॉम माय डिवाइस डज नॉट रिक्वायर हाई पावर, इट रिक्वायर्स लो पावर. तो ये लो पावर होना चाहिए आपके डिवाइसेस के अंदर, दैट्स अ रिक्वायरमेंट और वी कैन से डिजाइन गोल. The LAN design should take this into account and implement special power saving modes. आपके मोबाइल में, आपके डिवाइस में, जरूरी नहीं मोबाइल फोन ही हो सकता, यू मे बी यूजिंग एनी वायरलेस लैन डिवाइस. ओके, तो उस डिवाइस के अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए, अगड़म बगड़म कुछ होना चाहिए सो दैट इट सेव द पावर सेविंग मोड होना चाहिए और पावर मैनेजमेंट फंक्शंस होना चाहिए. लॉट ऑफ मोबाइल फोन्स आर हैविंग पावर सेविंग मोड्स, दे आर हैविंग स्पेशल फंक्शंस आर गिवन फॉर द पावर मैनेजमेंट. ओके, I hope you are understanding the things what I want to say. So this is the requirement, I can say this is the design goal I want to say, that your wireless LAN product or devices must have the low power so that you can communicate without attaching any power device with your appliance. Okay, so that's the second design goal in the wireless LAN. The third is license free operation.
लाइसेंस फ्री ऑपरेशन, where LAN operators do not want. अच्छा, आप लोग वायर्ड यूज करते हैं तो कुछ उसके लिए लाइसेंस आपको लगता है? नहीं लगता है। लेकिन वायरलेस लैन लगेगा तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं कोई रेंज में काम करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ ना कुछ आपको यूज करना है। अगर आप कभी वाईफाई राउटर यूज करते हैं तो इसकी भी कुछ रेंज है, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड। हालांकि सारा का सारा एम्बेडेड होता है अंदर, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट दीज आर दी डिजाइन कोड। यू नो व्हेन वी टॉक, जब आप लोग बोलते हैं ना, जब लेजेंड बात करते हैं, जब डिजाइनर बात करते हैं, जब डेवलपर्स बात करते हैं, तो वो ये लेवल पे बात करना होता है। ओके, दैट उनको यहाँ तक सोचना होता है। हम लोग तो चलो क्ले मैन है, एंड वी आर द यूजर्स, वी आर द एंड यूजर्स, वी डोंट हैव टू थिंक एट ऑल ओके अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ओके, कि लाइसेंसेस का है कि नहीं, मैं मेरे घर पे वाईफाई राउटर लगा है, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, अगर ये रेंज के बाहर निकल जाऊँ तो मुझे पुलिस पकड़ तो नहीं लेगी, या साइबर वाले मुझे पकड़ तो नहीं लेगी। We don't have to worry about all these things because these things have already done by the people who have worked on it. Okay, so यहाँ पर आपको license free operation होना चाहिए if you are using wireless LAN, that is wireless LAN. Okay, the equipment must operate in a license free band such as the 2.4 GS ISM बैंड। जैसे एग्जांपल दिया उसने, जैसे 2.4 GSM गीगाहर्ट्ज का ISM बैंड है, वैसे ही हमारे वायरलेस लैन के सारे प्रोडक्ट हमारे एक पर्टिकुलर लाइसेंस फ्री ऑपरेशन काम करना चाहिए। उसके लिए कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट, स्पेशल लाइसेंस की जरूरत नहीं होना चाहिए। Requirement, okay, I'm again reminding you, these are the requirement, these are the goals which should be set into the wireless LAN. Okay, robust transmission technology. Compared to their wide counterpart, wireless LAN operate under difficult condition. If they use the radio transmission, many other electrical devices can interference. तो basically जो मैटर है वो किस चीज का है? इंटरफेरेंस का है। ठीक है, तो आपको अपना प्रोडक्ट का उसकी जो रेंज है वो आपको ऐसे यूज करना है कि किसी और को आप डिस्टर्ब ना करो। अब ये मेरा क्या है? मेरा माउस है। ठीक है, माई माउस इज वर्किंग, माई माउस इज वर्किंग ऑन ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। इसके अंदर ये मैं इसको ब्लूटूथ से यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा अडेप्टर है यहाँ पर। ठीक है, ये मेरा अडेप्टर है। ओके, सो अडेप्टर को मैंने कनेक्ट कर दिया। अब ये एक तो कम्युनिकेशन चल रहा है, मैं जैसे जैसे मूव कर रहा हूँ तो मेरा माउस भी मूव होते जा रहा है। ठीक है, बिकॉज द कम्युनिकेशन इज हैपनिंग बिटवीन दिस माउस एंड द अडेप्टर। अब उसी टाइम पे माई मोबाइल from which I am recording, or from which I am taking the lecture or session, so it is also connected with my Wi-Fi router. Okay, second thing, दूसरा, my laptop from which I am presenting is also connected with the Wi-Fi router. तो मैं 3 डिवाइसेस का कम्युनिकेशन चल रहा है, मेरा माउस का कम्युनिकेशन चल रहा है, मेरा लैपटॉप भी कम्युनिकेट कर रहा है, माई मोबाइल इज ऑल्सो वर्किंग। ओके, तो मेरा इतना सब चल रहा है, लेकिन इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो ये इन लोगों ने पहले ऑलरेडी सेट कर चुका है, बस ये बोलने की बात है कि ये ऐसा होना चाहिए। robust transmission technology. Okay, if you are using any kind of transmission, then there may be any other electrical devices which can interfere with them. Okay, like an example भी दिया vacuum cleaner, और क्या है लिखा है, हेयर ड्रायर्स एंड ट्रेन इंजन, ऐसे एग्जांपल दिया उन लोगों ने, विच आर ऑपरेटिंग, विच आर राइट नाउ। जब उन्होंने बुक लिखा था तब दे वर ऑपरेटिंग, ऑल दीज एग्जांपल वर ऑपरेटिंग ऑन द वायरलेस लैन टेक्नोलॉजी। ओके, हाँ, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा डिजाइन गोल है सिंप्लीफाइड स्पॉन्टेनियस कोऑपरेशन। स्पॉन्टेनियस मतलब ऑन द स्पॉट। ओके, टू बी यूजफुल इन प्रैक्टिस, WLAN शुड नॉट रिक्वायर कॉम्प्लिकेटेड सेटअप। आए, एक आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, कनेक्ट किए, सब आपस में हुए कनेक्ट। देखो आप लोगों ने पहले एक छोटा सा एप्लीकेशन यूज होता था, आज से 5 साल पहले बहुत से लोग ब्लूटूथ नहीं, सॉफ्टवेयर डेटा केबल करके ऐसा कुछ, तो या आपके पास अभी भी है, हम लोग अभी यूज नहीं करते, बिकॉज पीपल्स आर नाउ डाउनलोडिंग थिंग्स डायरेक्टली फ्रॉम द इंटरनेट, सो दे डोंट रिक्वायर टू शेयर द थिंग्स विद ईच अदर। वरना वो बीच में 2-3 सॉफ्टवेयर थे, उसकी मदद से वी कैन मल्टीपल डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट विद ईच अदर with the help of wireless LAN technology. So एक थ्रू लोग कनेक्ट हो जाते थे, और फिर जो भी डेटा ट्रांसफर करना है, तो मुझे इसको डेटा, मुझे एक वीडियो फाइल इनको ट्रांसफर करना है, इसको उसको करना है, उसको मुझे करना है, या मुझे इसको करना है, तो जो भी करना है दैट यू कैन डू। ओके, सो एक ऐसा मतलब होना चाहिए वायरलेस टेक्नोलॉजी, इट मस्ट बी सिंप्लीफाइड and it can be formed spontaneous, it can be formed on the spot. Okay, so there must be a cooperation between all the devices which are coming for communication, that
is a requirement, or we can say the design goal of the wireless LAN. Easy to use, they should not require complex management, but rather work on the plug and play basis. ऐसा भी हो सकता है. Easy to use in contrast to the huge and complex wireless wide area network. Wide area network. Wireless LAN are made for simple use. ठीक है. तो उसने कंपैरिजन किया बेसिकली आपके वायरलेस लैन का और वैन का. ठीक है, टाइम ज़्यादा हो रहा है. आप ये है आपका प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एप्लीकेशन, दैट्स ऑल. सो 3 बचे हैं, थोड़ा रिवाइज करके कल 3 हम लोग ले लेंगे. ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम. 2:54 हो गए. ओनली 6 minutes are remaining for your next lecture. 5 minutes are remaining. You can relax for 5 minutes and then you can start with it. Okay. I'm stopping the session. Stop recording. Zaid